I am not forcing anyone to do it. हटाना सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. Hello you guys and welcome back to my channel and welcome back to yet another episode of my birthday series. It is the episode 6 or 7 of my birthday series, and if you are enjoying it then do not forget to subscribe to my channel. And if you are new to my channel then hi, my name is Vanshika and I do make videos on fashion, beauty and lifestyle, and currently I am running a birthday series where I am uploading videos alternate days. So if you haven't subscribed yet, please click on the subscribe button. I'm wishing to hit 1k subscriber onto my birthday. And yeah, now without any further ado, let's just get started with today's video. थंबनेल और टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल चुका है what this video is all about. This video is all about my birthday prep. So my birthday is on 17th of April and I needed a prep, like I needed a skincare and something good salon spa like finish at home, but I do not want to visit any salon this time. I really wanted to do everything at home. Usually जो मैं festivals इन सब टाइम पे हम लोग घर पे करते हैं, मुझे वही सब कुछ करना था. Nothing too extra, nothing too fancy. जो भी चीज़ें किया, it is a 5 to 6 step routine which I do follow at home, and it gives such a glass skin glow like this. So if you are interested in watching this video then please continue watching. The first step we have icing. Now face को ice करना जब आप सुबह उठते हो या फिर यूजुअली भी आइसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आइसिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए. जो भी आपका डीप पफिंग होता है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल होता है, वो सब आपका एक आइसिंग फेस को हेल्प करता है डीप पफ करने के लिए. आइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को अवेक कर देता है एकदम से. तो अगर आप जब यूजुअली भी ऐसा नहीं है कि कभी कोई इवेंट आ रहा है या कोई फेस्टिवल आ रहा है तभी हमें आइसिंग करनी है. इवन इफ अगर आप रोज़ भी करोगे आइसिंग तो यू विल definitely see results in your face, and even आपको एक ग्लो भी देता है. कुछ स्किन केयर अगर नहीं भी कर रहे हो, आइसिंग भी कर रहे हो रेगुलरली, इट विल डेफिनेटली शो यू द रिजल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आइसिंग करी. आप ये वाला आइस बकेट भी ले सकते हो मीशो से, वरना मेरे पास तो ये वाला आइस वाला जो थिंग है, मैंने आपको वीडियो में आप देख भी सकते हो कि मैं ये वाला टूल यूज करती हूँ विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो, और इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन. तो आप कोई भी यूज कर सकते हो अपने आइसिंग के लिए. एंड आफ्टर आइसिंग आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट डाउन करना है. आइसिंग भी तभी करना जब आपका फेस प्रॉपरली वॉश्ड हो. तो आप कोई भी एक जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हो, फेस वॉश यूज कर सकते हो. ईदर यू कैन यूज द सिंपल वन और यू कैन यूज इट योर सेटाफिल सेरावे. आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो जो आप रेगुलरली भी यूज करते हो, बट मेक श्योर कि आपके फेस पे कुछ ना हो. एंड देन कंटिन्यू विद योर आइसिंग. ना आइसिंग कर ली है तो 5 से 10 मिनट अपनी स्किन को रेस्ट आउट करो. Now the second step is for not everyone. It's not for everyone. अगर आप comfortable हो तो आप कर सकते हो. I am not forcing anyone to do it. If you are comfortable with shaving, so my second step is shaving, which I usually follow. मैं after every 2 weeks अपना face shave करती हूँ. Yes, I like to remove my facial hairs. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप एक बार try out करके कर सकते हो, because you will definitely see a huge difference after shaving your face. ऑल्सो फेशियल हेयर्स हटाना सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. यू वांट टू रिमूव इट और नॉट. कई लोग वैक्सिंग प्रेफर करते हैं, कई लोग थ्रेडिंग प्रेफर करते हैं. everyone follows every other rule, but मैं basically use करती हूँ face razors. मैंने ये आपको दिखाया भी है. This is the face razor I use. This is from Aza. These are the Aza razors. काफ़ी affordable rate पे, काफ़ी affordable price पे आपको ये razors मिल जाते हैं. And yes, इसमें आपको 3 का पैक आता है. I use this. It is called the derma planning process. And derma planning में क्या होता है? derma planning process या फिर shaving बोलूँ, बात एक ही है. derma planning में आपको क्या करना होता है? You have to apply the moisturizer on your face. Now razor से पहले भी या shaving से पहले भी
मेक श्योर कि आपने अपने फेस को प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर लिया हो। अब जब आपने आइसिंग करी है 10 मिनट आपने स्किन को रेस्ट करने के लिए दे दिया है, उसके बाद अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर व्हेन आई यूज दिस प्लम का सेरासेंस मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। उसके बाद यूज द फेशियल रेजर। 45 डिग्री पे अपने रेजर को पकड़ना है एंड यू जस्ट हैव टू डू योर शेविंग। बहुत ही स्लोली करना है, हार्शली नहीं करना है दिस प्रोसेस, बिकॉज जब आप एक स्किन केयर कर रहे हो, ग्लो अप दे रहे हो अपने फेस को, इट इज जस्ट फॉर योर रिलैक्सेशन, राइट। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से चीज़ों को करना है। सो मेक श्योर कि आप बहुत आराम से करो, टाइम लेकर के करो। 1 या 2 घंटा तुम्हें लगेगा इन सबको करने में, चाहे 5 स्टेप हो या 6 स्टेप हो। आराम से उस चीज़ को स्लोली करो एंड आपका रेजर डन हो गया। इस रेजर से आप अपने आईब्रोज भी कर सकते हो, अपना फोरहेड भी कर सकते हो एंड अपर लिप्स भी कर सकते हो। सो आई डू एवरीथिंग ऑल ऑफ माई फेस। नाउ उसके बाद जब आपने शेविंग कर ली है, अपने फेस को वॉश कर दो आराम से दोबारा से विद अ क्लेंजर। इवन आप सिर्फ रिंस ऑफ भी कर सकते हो एंड जस्ट नाउ लेट द स्किन रेस्ट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 15 to 20 मिनट्स तो अपनी स्किन को रेस्ट करवा दो, क्योंकि आपने अगर रेजर यूज किया है तो अभी नाउ योर स्किन इज एक्टिव। आपने जैसे ही शेविंग कर लिया है उसके बाद भी आपको एक नाइस थिन लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना है। थिक लेयर लगाओ या थिन लेयर लगाओ, बट एक लेयर अपने मॉइस्चराइजर की लगा दो फेस पे, जिससे आपका फेस थोड़ा सा काम डाउन हो सके। काम डाउन होने के लिए हम 15-20 मिनट रेस्ट करने के लिए दे ही रहे हैं स्किन को, लेकिन आपको एक मॉइस्चराइजर भी लगाना है, जिससे कि अभी जैसे आपने रेजर यूज किया है उसको कोई एक्ने ना हो, कुछ एलर्जिक ना हो, कुछ हो ना, इसलिए यू हैव टू अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, क्योंकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगे, आपकी स्किन ड्राई ना हो। ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप रेजर भी यूज कर रहे हो अपने फेस पे तो आपको ड्राई पे यूज ना करो, ड्राई स्किन पे यूज ना करो, इट माइट रिएक्ट। ओके, आपको कट्स निक्स भी पड़ सकते हैं ड्राई स्किन पे, एंड ऑल्सो ड्राई स्किन पे यूज करना इतना अच्छा नहीं होता है, इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। ना 10-15 मिनट के बाद जब आपने स्किन को रेस्ट करने के लिए दे दिया है, ना फॉर द थर्ड स्टेप आई हैव अ फेस मास्क। ना फॉर द फेस मास्क बहुत टाइप के मास्क हैं मार्केट में, आप क्ले मास्क भी यूज कर सकते हो, आपको कोई भी मास्क यूज करना है जो भी आपके पास घर पर है या फिर जो आपके बजट में है। आप मैं रिसेंटली मिनीसो भी गई थी, वहाँ पे भी मुझे ये बबल शीट मास्क मिला था, तो यू कैन यूज इवन दिस। मेरे पास डालबा का PR आ रखा था तो मैंने डालबा का यूज कर दिया फेस मास्क। आपके पास नायका का है, कोलाजन मास्क आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मास्क आ रहे हैं। आपको क्ले मास्क लगाना पसंद है, अगर कुछ भी नहीं करना है, दही लो, बेसन लो, उसको मिक्स करो और अपने फेस पे लगा दो तो भी यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप उसको अप्लाई करो, आराम से बैठ जाओ, लाई डाउन कर लो, कहीं पे भी अपना जो भी आपको पसंद है, फोन स्क्रॉल करना है, मोबाइल स्क्रॉल कर लो, आपको रीडिंग पसंद है रीडिंग कर लो, मतलब गिव इट आराम से 20 to 25 मिनट्स एंड लेट द मास्क स्टे। क्ले मास्क तो आपको पता ही है, जब आपका ड्राई हो जाएगा तब आपको हटाना है, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग द शीट मास्क तो शीट मास्क को आराम से 15 to 20 मिनट्स देने होते हैं, तो 20 मिनट्स दो। एंड जो भी उसका रेजिड्यू होगा ना, ये मास्क के जो मास्क के ऐसे रैपर में, उसके बाद एक नीचे इनके अंदर एक रेजिड्यू बच जाता है, तो इस रेजिड्यू को आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। जब आपका फेस मास्क पूरा सूख जाएगा, आपने हटा दिया उसको, रिंस ऑफ नहीं करना है। जब भी आप एक शीट मास्क को रिमूव करोगे तो आपको उसे रिंस ऑफ नहीं करना होता है पानी से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे लेट इट स्टे फॉर अ वाइल, लेट योर स्किन एब्जॉर्ब्स, एंड उसके बाद जो इसमें जो आपका रेजिड्यू बचा है, आप उसको अपनी नेक्स, अपनी एल्बोज, जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है आपके पिगमेंटेड एरियाज है, आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हो। सो दिस रेजिड्यू इज नॉट वेस्ट ऑफ मनी एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस ऑल्सो। ओके, नाउ अब आपने फेस मास्किंग कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, नाउ अगेन लीव योर स्किन लाइक दैट। अब उसको छोड़ दो, क्योंकि अब हमारा फेस का काम हो गया है। जो भी हमें ग्लो करना था हमने कर दिया है एंड योर फेस विल डेफिनेटली ग्लो अप लाइक दिस। आपको लिप बाम लगाना है, आप लिप बाम लगा सकते हो। फॉर योर 5th स्टेप डू द लिप बाम। अब बात आ जाती है बॉडी की। अब फॉर द 7th स्टेप
और फॉर द सिक्स्थ स्टेप, मुझे नहीं पता है मैं सिक्स्थ को लिप बाम में कंसिडर करूँ या नहीं, लेट अस कंसिडर द सिक्स्थ स्टेप. द सिक्स्थ स्टेप वुड बी योर बॉडी रेजर, बॉडी शेविंग फॉर योर बॉडी. नाउ कमिंग अप टू योर बॉडी, अगर आप वैक्सिंग करते हो अगेन तो आप वैक्सिंग प्रेफर कर सकते हो. अगर आप रेजर यूज करते हो, पर्सनली मी आई यूज रेजर, आई यूज शेविंग, आई यूज दिस जिलेट वीनस बॉडी रेजर्स फॉर वुमेन. आई लव टू यूज दिस. नाउ जैसे फेस को आपको ड्राई शेव नहीं करना है, वैसे ही बॉडी को भी आपको ड्राई शेव नहीं करना होता है. यूज अ थिक लेयर ऑफ बॉडी वॉश. पूरा प्रॉपर अच्छे से अपनी बॉडी पे लादर कर लो बॉडी वॉश को, एंड देन स्टार्ट यूजिंग योर रेजर, स्टार्ट शेविंग इट. इधर आपका हैंड्स हो, आपके लेग्स हो, जो भी हो, यूज इट ओनली वेन योर स्किन इज वेट. ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, लास्ट मोमेंट है, एंड मोमेंट है, तो भी ड्राई शेविंग तब भी नहीं करनी है. अपने स्किन को आप वेट कर लो, पानी डाल लो, तब कर दो रेजर, तब शेविंग कर लो, लेकिन डू नॉट यूज इट ऑन ड्राई स्किन. ड्राई स्किन पे करोगे आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. इफ़ यू आर यूजिंग अ थिक लेयर ऑफ बॉडी वॉश एंड देन शेव कर रहे हो, या फिर आप शेविंग फोम यूज कर रहे हो, you will feel your skin soft and supple. I mean seriously, I have seen results. मेरी लोग बोलते हैं कि शेविंग के बाद हार्ड हेयर ग्रोथ ये सब होता है. भाई मैंने I have observed and I have felt the soft skin ever. मैं अब आपने बॉडी शेविंग कर लिया है प्रॉपर. The last step, I lost the number of count. The last step would be a body lotion. अब आपको हर जगह, जैसे आपने शेविंग के बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया है, वैसे ही बॉडी शेविंग के बाद अब आपको बॉडी लोशन लगाना है. For personally for body lotion, I use this one from Bath and Body. It's a champagne toast one. I also use the plum vanilla caramel body lotion. That is also very nice, क्योंकि जो बॉडी लोशन लोगे मेक श्योर वो हाइड्रेटिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, अच्छे से आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज कर दे, जिससे कि ना ही आपकी स्किन ड्राई हो, ना ही आपकी स्किन पे बम्प्स आए, और ना ही आपकी स्किन फ्लेकी लगे. ऑल्सो जिनके स्ट्रॉबेरी लेग्स होते हैं उनको भी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड द लास्ट स्टेप, एंड इट्स द ऑप्शनल स्टेप, इट इज़ अबाउट द नेल्स. ना जिनको नेल्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, दे वॉन्ट टू कीप देयर नेल्स लुकिंग सो प्रिटी. आई पर्सनली आजकल तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बिकॉज ब्रांड में कभी कभी ब्रांड वीडियोज़ में कोई कलर चाहिए होता है स्पेसिफिक, तो आई नाउ जस्ट लीव माई नेल्स लाइक दिस. आई डू नॉट लाइक टू अप्लाई नेल पेंट्स नाउ. सो या अब आपने अगर बॉडी शेविंग कर लिया है, बॉडी लोशन लगा लिया है, तो मेक श्योर अगर आपके ये क्यूटिकल्स अगर ड्राई हैं और आपके क्यूटिकल्स पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्यूटिकल ऑयल लगा सकते हो या फिर नॉर्मल बॉडी ऑयल भी लगा सकते हो. आई पर्सनली यूज बॉडी ऑयल, क्योंकि मेरे को क्यूटिकल्स के एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक. बट यू कैन यूज क्यूटिकल ऑयल, और यू कैन इवन डू मैनिक्योर एंड पेडिक्योर एट होम एज वेल. नथिंग टू फैंसी, अगेन नथिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बट या दैट्स इट फॉर माई बर्थडे ग्लो अप. दैट्स इट फॉर द बॉडी एंड फेस ग्लो अप रूटीन. अभी मैंने हेयर को नहीं इंक्लूड किया है इसमें. सो इफ यू वांट अ हेयर ग्लो अप और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. एंड कोई भी प्रोडक्ट लिंक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. इस बार कोई भी प्रोडक्ट टैग नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय.